So, welcome to Bollywood Spy Bebika. Firstly, I want to know from you what is that coming up. आपने बताया मूवी का हिंट मुझे पहले इंटरव्यू में दिया था. इसके अलावा बोटी बोटी का भी बताया था. अभी जो मूवी आ रही है, द कैरेक्टर, व्हाट इज इट? इज द नेम रिवील? इफ एवरीथिंग इज ऑलरेडी ऑन द फ्लोर और व्हाट? A lot is not revealed, and I have to be discreet. I can't speak a lot, but I would say I'm playing a character where I'm very smart, intelligent, intellectual, solving mysteries, but I'm also very vulnerable and highly loving and very emotional as well. So this is a kind of character that I'm playing, and it's of course by a very renowned Bollywood production. इसके अलावा और ज्यादा नहीं बता सकती, बट जैसे ही द स्क्रिप्टिंग इज डन, थिंग्स आर फॉलिंग इन प्लेस, इट्स इनटू पिचिंग टू बिगर प्लेटफॉर्म्स एज वेल, इट्स गोना कम इनटू सिनेमाज एंड ओटीटी बोथ. तो जैसे जैसे और अनवील होता जाएगा, आई डेफिनेटली स्पीक अबाउट इट. Vedika, secondly, I want to know is the character that you really was desiring to work on or what it is? Well, I would say yes. To a very great extent, it's something which resonates strongly through my personality, and I have a lot of list of characters in my head which I want to play. But it's a lead character. It's a female lead. There are two female leads in it, and I'm one of those. तो बहुत बड़ी बात है, and a lot is getting on track. बहुत बड़ी तो बात है बिल्कुल. हाँ, तो मेरी जो लिस्ट ऑफ किरदार है उसमें से एक है ये. That's what I would say. अब तक कौन सी मूवीज देखी है जो वाकई में आपको बहुत पसंद है और आप इंस्पायर होती हो उन मूवीज से और उन कैरेक्टर से कि हाँ कभी ऐसा मौका भी मिले कि इस तरह का कैरेक्टर पर्दे पर आप कर सकते? वेल दुश्मन जो पूजा मैम की मूवी है, मैं बचपन में देखा था मैंने. और आई वाज मैडली इन लव विद काजोल्स डबल रोल एंड द वे शी वाज इन द मूवी. तो वो कैरेक्टर, फिर शक्ति में करिश्मा कपूर मैम, फिर गंगूबाई में आलिया. These are certain characters which I really want to do. And कुछ कुछ होता है मैं काजोल, that tomboyish girl who suddenly turns this. यस. Because I was this tomboyish girl throughout the show as well, and all my life I had been very tomboyish. So I really want to do such distinctively different characters which stand out. Not the typical lady, the Indian lady which people want to see. Not that. Woman centric and a little stronger and powerful and also very vulnerable at the same time. अभी फिलहाल कौन सी मूवी देख रहे हो एंड लास्ट मूवी अभी जो आपने देखी है वो कौन सी? Well, मैंने अभी जवान देखी थी लास्ट. और वाह. फिलहाल तो मैं अरबी चैनल देख रही हूँ क्योंकि मुझे अरबी सीखनी भी है. बट आई एम ट्राइंग टू गेट माई नेक्स्ट नेटफ्लिक्स ऑन ट्रैक, ताकि थोड़ा बहुत देखने को मिले, एंड अदर एप्लीकेशंस एज वेल. और अरबी सीख ली आपने? थोड़ी बहुत, जितनी मैं पेशेंट से बात कर पाऊँ उतना सीख रही हूँ, बट इट्स अ लॉन्ग वे. तो गिव मी माई टाइम. Okay, then we will have a session where we'll ask you certain questions in Hindi and you have to reply in Arabic. Oh क्या my बोलोगे God, इस not पे? now. Not now. Once I've learned it in a proper way. Up तक you're my patient, बिल्कुल. I can only ask you, do you have pain anywhere? I can just ask you, FLM, that's all I can ask you. इसके beyond I can't. So don't go there. All right. जैड के साथ मीटअप हुआ क्योंकि Yeah. हम तो वही एंटिसिपेट कर रहे थे. हाँ, कैसा था प्लीज बताइए. बहुत मजा आया यार, मतलब I'll tell you, I'm literally living my dream. जो घर के अंदर हम सोच रहे थे वो हमने बाहर literally we have accomplished it, and we had that, we made time for each other. We made sure we you know get things done the way we were thinking, and वो reunion बहुत special रहा. तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. मैं, पूजा मैम, जैड, we were chilling in Dubai and having the greatest time. जैड में कोई बदलाव आया है? कुछ नोटिस किया आपने? नहीं यार, वो जैसा घर के अंदर था उससे और हम्बल बाहर है. तो घर का माहौल सबको ही चक्रम कर देता है. तो बेचारे को कर दिया होगा चक्रम, मुझे भी चक्रम कर दिया उस घर ने. तो बाहर वो और हम्बल है, वो और डिसिप्लिन्ड और केयरिंग और स्वीट है. मुंबई को मिस कर रहे हो आप? मुंबई काफी वाइब. हद तक, क्योंकि मुझे दुबई खुद वाइब और अपने मुंबई काम वाइब. करने पड़ते हैं यहाँ पे. कपड़े धोने पड़ते हैं, खाना बनाना पड़ता है, साफ सफाई करनी पड़ती है. तो वो एक चीज मैं मिस कर रही हूँ. फैमिली को बहुत बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, अपने डॉग को मिस कर रही हूँ. और एक एक चीज है कि खालीपन महसूस होता है. आप घर आते हो तो खाली घर पर आते हो जहाँ कोई नहीं होता. तो वो मुंबई में नहीं होता था. मुंबई में मैं घर आती थी तो मेरे
घर में ही मोहल्ला होता था, क्योंकि मेरा परिवार इतना बड़ा है। तो वो चीज मैं मिस कर रही हूँ। डेफिनेटली। ऑल्सो बेबिका, जब हमने बात की थी पिछली बार, आई थिंक व्हेन यू वर एंटरिंग इन द बिग बॉस हाउस, तब मैंने आपसे बात किया था एंड यू टोल्ड मी सर्टेन थिंग्स कि भाग्य लक्ष्मी में इतना ज्यादा आपका किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ। तो मैं आपको एज अ पर्सन आपके बारे में जानना चाहती हूँ कि आपके लिए वो टर्न ऑन और टर्न ऑफ पॉइंट क्या होता है, किसी भी इंसान से मेरे बात मेरे लिए टर्न ऑफ पॉइंट, करें। देखिए मुझे एरोगेंस, नार्सिसिज्म और बुलिंग नेचर लोगों का समझ नहीं आता। मुझे हम्बल और ग्राउंडेड और रियल लोग बहुत अच्छे लगते हैं। जब कोई घमंड में चूर, अपने आप में डूबा हो और खुद को ऊंचा समझे, हर किसी को नीचा समझे, और वो सब क्वालिटीज, और बुली करे अपने आप में, वो सब क्वालिटीज मुझे समझ नहीं आते। और फिर मैं डिफेंसिव भी हो जाती हूँ। मैं फिर मुंह तोड़ जवाब देने में बिल्कुल। आती हूँ। मैं ऐसी हूँ, मुझे आप अच्छी वाइब दोगे, मैं उस अच्छी वाइब को बढ़ा चढ़ा के आपको दूंगी। आप मुझे बुरी वाइब दोगे, वो बुरी वाइब भी बढ़ा कर मैं आपको दूंगी। तो मेरा नेचर ऐसा है, मैं एक्सट्रीमिस्ट, मुझे मिडवे समझ नहीं आता। तो यही यही नेचर है, बहुत सिंपल नेचर है मेरा। पता नहीं दुनिया मुझे समझने में इतनी देर क्यों लगा लेती। बिल्कुल सही कहा बेबिका। खबरें थी उस वक्त कि यू लेफ्ट द शो, यू वर प्लेइंग अ कैरेक्टर वेदिका यस, ओबरॉय इन द देविका शो। ओबरॉय, या। यस, आप वहां पे, लेकिन खबरें थी कि किसी डिसएग्रीमेंट की वजह से यू हैड टू स्टेप डाउन। तो वुड यू लाइक टू शेयर कि एग्जैक्टली व्हाट वाज द थिंग और व्हाट हैपेंड? Well, I was treated very badly by certain actors on the set as well. I mean, they were superior because they were more experienced. They treated me as if I am nobody, and they ill treated me, they fought me, they abused me वर्बली, एंड अ लॉट हैपेंड। तो वो मैटर मैंने साइड में श्रग ऑफ किया, क्योंकि वो मेरी लाइफ का पहला शो था और मुझे वहां पे काम करके आगे बढ़ना था। फिर प्रोडक्शन में भी और बेहतर नहीं मिल रहा था, मतलब और शोज उनके आ रहे थे, बट आई वाज गोइंग नोवेयर। 2 साल तक लगातार मैं एक ही शो में अटकी थी। जबकि और पोटेंशियल मुझ में तो बहुत पोटेंशियल दिखता है, लोगों को दिखे ना दिखे यार, मैं क्या ही कर सकती हूँ। मैं अपना वक्त वहां ज्यादा जाया नहीं कर सकती। द क्लॉक इज टिकिंग एंड द टाइम इज रनिंग। तो मैंने यही सोचा कि करेक्ट। अगर मैं ऐसे ही सालों साल यहाँ अटकी रहूंगी, expecting what I want, and I might not get that, then it's really a massive wastage of time. So this was also a reason, and I left, and it was creating a lot of heaviness on my schedule because I was going to the clinics as well, and I'm shooting as well. तो बाकियों के मुकाबले सबसे ज्यादा वर्कलोडेड मैं रहती थी। बिल्कुल। सो यू डिसाइडेड कि यहाँ पर या चैप्टर एंड हो टीवी और टीवी मुश्किल नई होगा मेरे शुरुआत। लिए ऐसे, मतलब थोड़े वक्त के लिए जाके शूट करके आके अपनी जिंदगी में वापस आना मेरे लिए आसान है। तो टीवी थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन वेब और ओटीटी और मूवीज मेरे लिए काफी फायदेमंद होंगे, एड्स और म्यूजिक वीडियोज ऐसे। डेफिनेटली। बेबी का अभी जो फील है, ये सेलिब्रिटी वाली फील, कितना एंजॉय कर, कैसा लगता है? मैं आपको सच बताऊं तो ये कोई बहुत बड़ा फेम नहीं है यार, क्योंकि मेरी नजरों में मैंने कोई बहुत ज्यादा काम नहीं किया है। बाकियों ने किया है अपनी अपनी लाइफ में, उनको अपने ऊपर बहुत नाज होगा। पर मेरा यही है कि मैं अभी सब्र कर रही हूँ कि और मैं कर पाऊं काम, और शुक्र कर रही हूँ कि जितना कर रही हूँ वो ऊपर वाले ने दे दिया है। तो सब्र और शुक्र करते करते आगे बढ़ रही हूँ। तो मुझे अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जिस दिन मैं वो करूंगी ना किन्नरी, तब मुझे लगेगा कि हाँ अब मैं इंजॉय कर रही हूँ फेम। बट ये तो मतलब इतने जल्दी मुझ में घमंड नहीं चढ़ने वाला है, इतना मैं खुद को जानती हूँ। मुझ में घमंड चढ़ाने के लिए आपको मुझे भगवान बनाना पड़ेगा। डेफिनेटली। मुझे जानना है कि ये जो बिग बॉस का फेम होता है, ये जो बिग बॉस से जो आपको पुश मिलता है, ये टेम्पररी है, ये कंटिन्यू होगा, क्या लगता है आपको? आपके ऑफ हिसाब से कोर्स आपका क्या? ये काफी हद तक टेम्परेरी और टाइम बीइंग का होता है। ये कंटिन्यू तब होगा, या ये और ग्रो तब करेगा जब आप काम करते जाओगे, और आपको सुर्खियों में रहना है तो अच्छा क्वालिटी वर्क करते जाओ और फिर सुर्खियों में रहो। ऐसे कोई मतलब आप काम ना करोगे और स्क्रीन पे नहीं दिखोगे तो ऑफ कोर्स चर्चा में भी नहीं रहोगे और लोगों की नजरों में भी नहीं रहोगे, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाओगे। तो बस बिग बॉस करने के बाद आप ये नहीं सोच सकते कि अरे मैंने दुनिया जीत ली अब खत्म। वहां से तो आपकी रेस शुरू हुई है, अभी तो और बहुत बड़ा करना है। बिल्कुल। एनी ड्रीम एक्टर जिसके साथ में आपको काम करना है, एंड जिसके साथ में आपको अपने आप को आप स्क्रीन पर देखते हैं, यू रियली लाइक कि हाँ मैं और ये एक्टर स्क्रीन पर बहुत अच्छे लगे?
Well, I really want to work with Salman sir. I want to work with Shah Rukh sir. I want to work with Hrithik Roshan sir. I want to work with Arjun Kapoor and Aditya Roy Kapoor in the modern day times. So these are few actors which are in my list, and I really want to be, working with them. Even Fingers Amitabh crossed. sir. Hopefully someday. ऑलराइट, लेकिन ऐसे भी कोई है बिग बॉस के घर से ही जो आपके साथ में काम करना चाहेंगे अगर उन्हें ऑफर होता है? हाल ही में अभिषेक ने कहा था, अभिषेक मल्हान ने कहा था कि इफ एवर देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, देयर इज एन ऑफर जहां मैं बेबिका के साथ काम करने का ऑफर, आई एम वेरी ओपन टू इट। हम बेबिका से भी उसका रिप्लाई जानना चाहते हैं, इज बेबिका ओपन टू वर्क विद अभिषेक? ये सब कब हुआ? मैंने तो नहीं सुना। क्योंकि ये सब इंटरव्यूज अगर ऐसे होते हैं तो मेरे फैंस टैग कर देते हैं और आता रहता है फीड्स में। तो मैंने तो उनके मुंह से नहीं सुना ये। मैं आपको जरूर लिंक भेजूंगी, रिसेंट अरे इंटरव्यू है। बाप रे। देखिए वो ना प्रोफेशनल ग्राउंड, अगर आप इतने हॉइटी टॉइटी हो जाओगे वैसे भी अपने करियर के स्टार्टिंग पॉइंट में कि मुझे इसके साथ काम नहीं करना, मुझे उसके साथ काम नहीं करना, तो बाद में ना आने वाले कुछ सालों बाद आप रिग्रेट करने लगते हो कि ऐसा एटीट्यूड इंडस्ट्री में नहीं चलता। और स्पेशली जब आप इतने फ्रेश हो, नए हो और आप कोई भी नहीं बने हो अब तक, तब तो बिल्कुल नहीं चलता। तो उस मजबूरी में शायद मैं काम कर लूं। लेकिन लेकिन मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ। मैं सिर्फ इंडस्ट्री में ही नहीं, मैं अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड से भी बहुत प्रोफेशनल हूँ। और मैं समझती हूँ कि एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड में क्या जरूरतें होती हैं, एंड व्हाट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड यू शुड कीप। एंड आई हैव ऑलवेज हैड द बेस्ट काइंड ऑफ एटीट्यूड। आई डोंट वांट टू बी अ ट्रबल फॉर एनीवन। सो आउट ऑफ विच डेफिनेटली। आप मेरे सामने कोई कोई दुश्मन ले आओ, कोई दोस्त ले आओ, पाताल नगरी से कोई पिशाच ले आओ, उसके साथ भी काम कर लूंगी मैं। बिल्कुल। इसके अलावा बिग बॉस 17 की शुरुआत हो गई है, क्या लगता है बिग बॉस 17 थोड़ा बहुत कुछ भी फॉलो किया है, कुछ देखा आपने प्रीमियर नाइट या कुछ? मैंने रील्स में ही जितना मुझे दिख रहा है ना उतना ही देखा, जो फीड्स में जबरदस्ती आता है। आप ढूंढते भी नहीं हो बट आता रहता है। तो उसमें मैंने देखा, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता ये सीजन हमारे सीजन जैसा कभी जाए या ब्लॉकबस्टर बने। क्योंकि जितना मैं देख रही हूँ ना, आधे से ज्यादा लोग है ना, काफी उतने ही क्लिप्स में मुझे समझ आ रहा है कि काफी हद तक है ना उनका गेम कॉपीड लग रहा है। पिछले कुछ सीजन्स में सबके गेम को देखा गया और वो चीज को रेपिटेटिवली किया जा रहा है। ओरिजिनलिटी नहीं लग रही है हमारे सीजन में। मैं बहुत ओरिजिनल थी, पूजा मैम बहुत ओरिजिनल थे। और फिर काफी कुछ कंटेस्टेंट्स थे जो बहुत ओरिजिनल थे। उन्होंने किसी और का गेम उठा के उस शो में लाके नहीं रखा। तो जो लोग ओरिजिनल बिल्कुल। रहते हैं ना और अपना कुछ अलग क्रिएट करते हैं, ऑर्गेनिक रहते हैं ना, वो लोग शो को हिट भी करते हैं। तो अगर ये लोग रेपिटेटिव करेक्ट। पैटर्न्स दिखाएंगे ना और तो फिर वो लॉन्ग रन फ्रस्ट्रेटिंग में हो याद जाएगा। रहते हैं। और ऑडियंस इरिटेट हो जाएगी फिर। करेक्ट। एडवाइस क्या होगी कंटेस्टेंट्स को बेबिका की तरफ से? देखिए मेरी तरफ से मैं क्या ही एडवाइस दूं। मैं ऐसी बंदी थी, मैं सिर्फ अपने दिल की सुनती थी और बहुत स्पॉन्टेनियस थी। कोई प्री प्लानिंग करके शो के अंदर मत बिल्कुल। जाइए, सोच समझ के मत जाइए। कुछ ऑलरेडी अपने मन में एक फ्रेमवर्क बना के मत जाइए। वहां जाइए, स्पॉन्टेनियस रहिए, ऑर्गेनिक रहिए, रियल रहिए, एंड बी योर सेल्फ कम्प्लीटली। इसके बियॉन्ड कुछ नहीं, ये सबसे सिंपल ट्रिक है। अभी तक किसी को सपोर्ट कर रहे हो या कोई ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत तो ठीक वेल मुझे कुछ? मुनावर मुनावर काफी स्ट्रांग लगता है। उसने ऑलरेडी ऐसा रियलिटी शो किया है और वो मास्टर माइंडेड है। उसका दिमाग बहुत शार्प है। और वो काफी ओरिजिनल लग रहा है मुझे कंपेयर टू अदर्स। करेक्ट। उसे झिझक करेक्ट। नहीं है अपने आप को ऑल आउट दिखाने में। तो वो मुझे बात उसमें अच्छी लगी। ही इज नॉट ट्राइंग टू बी समथिंग इन द शो जस्ट टू प्रिटेंड और जस्ट टू विन द ऑडियंस और जस्ट टू बी फ्रेंड्स विद एनीवन। ही इज हिमसेल्फ, एंड आई एडमायर दैट। तो मुझे लगता है ही हैज गुड पोटेंशियल। Definitely. On that note, Devika, here we come to an end, but still I want to know when is Boti Boti coming, and when is this untitled project of yours with Pooja Bhatt and with the Mahan director Vikram Bhatt? कब आ रहा है, क्या होने वाला है? Well, थोड़ा बहुत well, तो फैंस को बता। Pooja ma'am is not a part of the show movie, but of course it's from the Bhatt Productions. But it's gonna be untitled. It's gonna be very distinctive, and I think the audience would love it. It's a mixture of Yeah. everything. It's a commercial movie.
दूंगी, मुझे Yes. मुझे And जैसे what जैसे about इनको Boti मिलेगी मैं Boti? आपको दूंगी। बोटी बोटी, द थिंग इज कि इट वाज द ऑडियो इज रेडी बट इट वाज गोना बी शॉट इन इंडिया, बट अभी वो प्लान चेंज हो चुका Yeah. है, सो दे आर प्लानिंग टू शूट इट इन दुबई। सो द प्रोडक्शन वैल्यू हैज ऑल्सो इंक्रीज, बजट बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ सस्ते में नहीं बनता है। इंडिया में 1 लाख में म्यूजिक वीडियो बन सकता है, 80 हजार में बन सकता है, यहाँ नहीं बनता है। तो द प्रॉब्लम इज दैट, तो बजट बहुत बढ़ चुका है, प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ चुकी है, ऑफ कोर्स वीडियो की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो उसके हिसाब से प्लानिंग हो रही है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी हो जाए। तो ऑडियो लेके बैठी हूँ यार, मैं खुद आपकी तरह उतावली हो रही हूँ। Definitely, Devika. It's always, good to talk to you. हमेशा ही अच्छा conversation रहता है आपके साथ. आपका थैंक यू। शुक्रिया करना चाहती हूँ to join Bollywood Spy and give us your time. Although, आपकी तरफ से fans के लिए क्या मैसेज है? Please say it मेरे out फैंस so के that लिए यही वो मैसेज चीज है कि हमेशा कायम रहे. यही कि आज मेरा जो वजूद बना है वो फैंस की वजह से बना है, और मैं अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से अपने फैंस को अट्रैक्ट करती हूँ। तो मैं बहुत वर्शिप करती हूँ उनको, वो सब मेरे दिल के करीब है, और मैं चाहूंगी ऊपर वाला मुझे जितना ब्लेस कर रहा है, मुझसे ज्यादा मेरे फैंस को ब्लेस करे। थैंक यू सो मच फॉर द लव। Thank you, Devika. Thanks for joining Bollywood Spy and giving us your time. थैंक यू फॉर हैविंग मी। बाय।